इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज द मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी वर्क, इसको कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, और हाउ डज इट वर्क। जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, आपको किस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स मूव टू आवर ब्राउजर स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड दिस बिडिंग स्ट्रेटजी इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज इट वर्क? दिस इज अ स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी एंड इट्स हाईली competitive. What does that mean by smart bidding strategy? In smart bidding strategy, Google is going to look the past activity of the user and make a decision कि ये वाला user convert होगा या नहीं होगा. So if there is a possibility or the chances कि ये वाला user convert होगा, then Google is going to show your ad more often and more aggressively to that user जिसके convert होने के chances बहुत ज़्यादा है. For example, you are selling a shoes, which is the most common example. You are selling a shoes. For example, Nike shoes. You are a reseller of Nike shoes. So there is person A and then there is person B who is searching for the same product, Nike Air Force One shoes, and the person B is also searching for the Nike Air Force One shoes. But Google ने past activity से देख लिया कि past activity से मुराद ये कि वो आपकी competitor की websites पे जा रहा है, उसने किन किन articles को पढ़ा, कौन कौन से उसने YouTube videos देखी हैं, past में उसने कौन कौन सी purchases की हैं, like everything. Google knows everything regarding that person. Google knows कि ये वाला person convert होगा ही नहीं होगा. So from the past activity, Google ने ये recognize कर लिया कि person A के जो convert होने के chances हैं बहुत ज़्यादा है as compared to person B के chance convert होने के chances बहुत ज़्यादा might be he is a window shopper, he just looking, he is gathering information. So what does maximize conversion do? आपकी conversions कब maximize होंगी? जब आपकी जो product है वो product user A को दिखाई दे क्योंकि उसे convert होने के chances ज़्यादा हैं. So Google is going to show your ad to the person A. Here's the thing. So this is the smart bidding part कि Google decide करता है कि किसको ad दिखानी, किसको नहीं ad दिखानी. Doesn't matter कि if every user is searching for the same keyword. One thing, this is the smart bidding part. Now the next thing we discuss about highly competitive. How it is highly competitive. So person A जिसके convert होने के chances बहुत ज़्यादा है. अब आप अकेले नहीं है मार्केट के अंदर जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर दे, या 100 मोर पीपल जो कि सेम प्रोडक्ट सेल करें और जो कि सेम कीवर्ड पे बिड करें और सेम बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करें. सो अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. 100 लोग और भी हैं जो कि सेम यूजर को, पर्सन ए को एक्वायर करने के लिए पैसे हाईली अग्रेसिव बिड करने के लिए तैयार हैं और वो कर रहे हैं. सो अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन है कि आपका जो गोल है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन. सो अब आपको जितवाने के लिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बिड हाई, कि वो उन 100 जो यूजर्स हैं उसकी बिड उन 100 यूजर से ज्यादा हो. देन ओनली यू आर गोइंग टू विन दैट ऑक्शन और आपकी एड जो है टॉप ऑफ द प्लेसमेंट शो होगी और देन देयर इज मोस्ट चांसेस कि यूजर आपकी एड को क्लिक करेगा. इन दिस वे यू आर पेइंग हाई, like everyone is there, so that's why the market has become so much competitive and Google is trying to go after that, and that's fine. That's not a bad thing if you have a high CPC. Basically it's a signal which is a positive signal कि आपके अगर competitor $10 एक क्लिक पे देने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये कि they must be making some sort of money from there, which is a good signal for us कि हम भी उसी डायरेक्शन में जाएं क्योंकि हमारे competitor उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. उनको पता है कि यहाँ से पैसे बन रहे हैं, so which is the right direction कि अगर हम भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे, इसी यूजर को टारगेट करेंगे, तो we can also make conversions and make money at the end of the day. Next thing is try to bid high in order to win the auction. ये चीज भी हमने डिस्कस की है कि is going to bid high to win the auction. Doesn't matter कि इसको bid करना पड़ रहा है $10, doesn't matter उसको bid करना पड़ रहा है $20. He is going to bid aggressively just to make sure कि आप auction win कर रहे हैं और आप eligible हैं कि आप top of the placement आपकी ad show. And the third is implied meaning, maximize my conversion at any cost. So you are saying to Google maximize conversion. इसका अगर हम implied meaning देखें, जो छुपा हुआ meaning है कि maximize my conversion at any cost. जो bid देनी पड़ी है, दो मेरी conversion जो है वो maximum होनी चाहिए. So at any cost, आपकी conversion at any cost increase, which means your cost is going to increase, your CPC is going to increase. Ultimately, your conversion is also going to increase at the same pace. अगर आपकी ऑफर अच्छी है, आपकी प्राइस competitive है, आपका लैंडिंग पेज डिजाइन अच्छा है, etc. इन वेरिएबल्स को भी अगर हम कंसीडर करें. So last thing, let's discuss कि आप ये काम किस तरीके से करती है. For example, कि आपका जो $100 पर डे एड स्पेंड है पर कैंपेन के ऊपर, and you have set the maximize conversions bidding strategy. अब Google is going to start with high. Google is going to start with, for example, he's going to start with hypothetically. These are just a hypothetical or assumption वाले नंबर हैं, it's not exact number. For example, he's going to start with the $5 and he said, okay, अगर मैं $5 bid करता हूँ, I win the auction और auction win कर रहा हूँ, लेकिन I'm getting like maybe like 30 conversions out of the $100 budget. And then Google इसको थोड़ा सा decrease करता है. Let's see what would happen if I set the maximum CPC at the $4. Okay, अच्छा मैं 4 CPC डॉलर करता हूँ. अब आया कि मेरी placement first place से second place के ऊपर आ गई है. First placement second placement से मुराद ये कि आपकी ad जो almost 3 और up to 4 ads शो होती हैं. So first ad शो होती है which is the top absolute placement and then the second and the third. Okay, जो first पहले वो आपको first के ऊपर टारगेट कर रहा था तो आपको $100 के अंदर आपको 30 conversions आ रही थी. अब उसने जाके अच्छा यार अगर इसको मैं second के ऊपर शो करता हूँ, अगर मैं आपकी bid 5 से 4 के ऊपर कर दूं, अब now I can get a more click for the same budget क्योंकि मेरी bids कम हो गई हैं, तो अब मेरी जो ad है वो ज्यादा यूजर उसके ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं for the same amount of budget. अब ज्यादा यूजर आ रहे हैं, so which means more chances कि मैं same budget के लिए अब
मैं ज्यादा कन्वर्जन अचीव कर सकता हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो अब $5 से उसने $4 की आपके नंबर ऑफ क्लिक्स इंक्रीज हो गए और आपकी ट्रैफिक ज्यादा आना स्टार्ट होगी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ बजट, क्योंकि अब आप फॉर द सेम यूजर आप कम पे कर रहे हैं। नाउ आपके आप 30 की बजाय 40 कन्वर्जन आना स्टार्ट किया। ओके, दैट्स अ गुड, गूगल इज डूइंग हिज जॉब, आप कन्वर्जन मैक्सिमाइज कर रहे हैं। नाउ चेक करता है, ओके लेट्स डू, अगर मैं 3 के ऊपर करूं, नाउ उसने अब आपकी सीपीसी है 5 से 3 के ऊपर कर दी है। नाउ यू हैव स्टार्टेड टू गेट द कन्वर्जंस लाइक फ्रॉम 40 to 35। ओके, no, आई एम लूजिंग द कन्वर्जन, आई हैव टू इंक्रीज टू द 4। सो नाउ गूगल हैज फाइंड दिस पॉइंट व्हिच इज अ $4। अगर आपका बजट कांस्टेंट रहता है एंड ही बीट ऑलमोस्ट $4 एंड शो यू एट द सेकंड नंबर, देन यू गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ द कन्वर्जन फॉर योर डेली budget which you have set. So this is how the maximized conversions work. Let's see when to use it. Since it is a smart bidding, so it uses the previous historical data. So it's good that you have good considerable number of conversions in your account. So the good number that Google suggests is at least 15 conversions in the last 30 days. But the more conversions you have, if you have like 30 to 40 conversions in the previous 30 days, then it's good कि maximize conversions ने pattern identify कर ले कि किन यूजर से कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। जो यूजर कन्वर्ट हो रहे हैं उनके डेमोग्राफिक्स क्या, उनके साइकोग्राफी क्या है, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो देन गूगल इज गोइंग टू फाइंड मोर पीपल विद द सेम इंटरेस्ट लाइक दिस 6 इंटरेस्ट जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, और नए यूजर में जिनके अंदर भी सेम ये वाले 6 इंटरेस्ट हो। सो यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ डाटा, अदरवाइज इट्स जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड। गूगल इज गोइंग टू सी आई के यूजर कन्वर्ट होता है, लेट्स सी इसको ऐड दिखाते हैं, पता नहीं इसने कन्वर्ट हो रही है। सो यू नीड एट लीस्ट 30 कन्वर्जंस इन ऑर्डर टू यूज दिस मैक्सिमम कन्वर्जंस इफेक्टिवली। एंड इसका ऑपोजिट यही है, इम्प्लाइड मीनिंग इट डजंट परफॉर्म वेल व्हेन यू हैव अ लो वॉल्यूम। अगर आपके पास लो कन्वर्जन वॉल्यूम है और आपके पास इतना डाटा नहीं है, देन इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। इट विल वर्क वेल इवेंचुअली, बट यू हैव टू डू अ टेस्टिंग, और ड्यूरिंग टेस्टिंग यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू, और आपका जो कॉस्ट पर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द वन थिंग इट स्पेंड वेरी फास्ट, इट स्पेंड वेरी फास्ट। गूगल को सारा पता है कि इस यूजर के चांस कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये इन मार्केट ऑडियंस सेगमेंट में है। सो लेट्स शो योर एड एग्रेसिव टू दैट यूजर, सो दैट्स व्हाई आपका बजट बहुत जल्दी स्पेंड हो रहा था। एक चीज, दूसरा ये कि आप, हमने जो भी स्टार्टिंग में बात की कॉम्पिटिटिवनेस की, ही गोज आफ्टर द बॉटम ऑफ द फनल, क्रीम ऑफ द मार्केट, जो कि कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, जो कि हाथ के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड पर करके बैठे हुए हैं कि कोई हमें अच्छी ऑफर मिले और हम कन्वर्ट हो जाए, उन यूजर को टारगेट करते हैं। अब आपके कंपेटिटर भी इनको टारगेट करें, सो यू स्पेंड मोर, दैट्स व्हाई दे इज गोइंग टू स्पेंड एग्रेसिवली। बट इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द स्टार्ट इज अ ह्यूज स्पाइक इन द कॉस्ट, बट इवेंचुअली इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। यू विल सी दिस ट्रेंड। So this is how they maximize conversions work. Then there is personal analysis. Your ads might not shown to all the user even if they are typing the keyword you provided. Same thing जो कि हमने बात की, अगर एक पर्सन ए के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है और पर्सन बी के कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, ऑल्दो कि वो दोनों सेम कीवर्ड सर्च करें, तो हो सकता है कि पर्सन बी को ऐड कम दफा शो हो या शो हो ही ना, या सेकंड पेज पे शो, लेकिन पर्सन ए को बहुत ज्यादा मर्तबा और बहुत एग्रेसिवली उसको ऐड शो होगी। एंड देन मैक्सिमाइज कन्वर्जन, फाइंड न्यू कस्टमर एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच योर कॉस्ट विल इंक्रीज, सो डू द कन्वर्जन। सो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स गोइंग टू फाइंड न्यू कस्टमर जिसको लगता है कि यूजर के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। दिस इज वन मोर थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व एट दिस पॉइंट, आपके जो कीवर्ड है बिकम अ लिटिल बिट इररिलेवेंट। इफ अ पर्सन हैज द चांसेस टू कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल आप सेल करें कि नाइकी शूज, ठीक है, लेकिन ये आपका कीवर्ड है आपने बैकएंड पे दिया हुआ, लेकिन आप मैक्सिमम कन्वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर किसी ने सर्च किया कि बेस्ट जॉगिंग स्नीकर्स, फॉर एग्जांपल बेस्ट जॉगिंग स्नीकर विच इज टोटली डिफरेंट देन बेस्ट शूज, सो तो कि आपका ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन गूगल को लग रहा है कि ये इसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, एंड ही इज सर्चिंग फॉर द सेम थिंग दैट यू हैव टू ऑफर। जो कि आप चीज ऑफर कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम है जो कि यूजर सर्च कर रहा है, देन गूगल इज गोइंग टू टारगेट दैट यूजर। इन दिस वे यू गेट अ चांस टू डिस्कवर न्यू ऑडियंसेस, न्यू कस्टमर्स, बट इन डूइंग सो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप अपना, फॉर एग्जांपल आप मछली समंदर के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं, तो जितनी जाल आपका बड़ा होगा तो आप उतना ज्यादा आपके अंदर वो गंद वगैरह अंदर आएगा, पत्ते वगैरह या केकड़े वगैरह, इतनी ज्यादा चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। द सेम वे गूगल जितना एक्सपैंड होता जाएगा यूजर को एक्वायर करने के लिए, उतना ही हो सकता है कि आपको इररिलेवेंट ट्रैफिक आए, but that's okay, it just for time being it will start to decline with the passage of the time, so go and find new customers, as a result of which आपकी cost increase होती है, लेकिन you are making more money, you are getting more conversions, you are getting more revenue. So this is how maximize conversions work. Let's see in our Google Ads dashboard where we how this bidding strategy looks like. So in the bidding strategy, so this is the default setting जो कि Google हमें suggest करता है. So if we click on the change bid strategy, select a bid strategy not recommended. Why? क्योंकि we are taking a leverage from the Google कि वो ज़्यादा पैसे spend कर सके. So we are going to click anyway. So maximize conversion. So then there is an option set a target costs per action कि आप कितना एक
कस्टमर को एक्वायर करने के लिए स्पेंड करना चाहते हैं। तो इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू, यू आर पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द गूगल कि कितना एड स्पेंड या कितने पैसे स्पेंड कर सकता है एक यूजर के ऊपर उसको कन्वर्ट करने के लिए। इफ यू आर न्यू, सो जस्ट डोंट पुट दिस रिस्ट्रिक्शन। ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग दिस स्ट्रेटजी अगर आपके पास प्रीवियस का डाटा है। So how does it work? Maximize conversions. Okay, just Google I'm selling Nike shoes. So do you know anyone जो कि कन्वर्ट हो सकता है? Okay, Google कहता है ठीक है, these are the 100 people जो कि मुझे पता है कन्वर्ट हो सकते हैं, मे बी और मे नॉट, वी हैव नॉट 100% श्योर, लेकिन इनकी कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मैंने कॉस्ट पर एक्विजिशन लगा दिया, which I'm saying to Google, okay, इन 100 में से कितने लोग इसको तुम्हें लगता है कि they will 100% कन्वर्ट? Okay, Google कहता है इन 100 में से ये जो 60 पीपल हैं, I am 100% श्योर कि अगर मैं इनको ऐड दिखाऊंगा इनके 100% चांसेस हैं कि ये कन्वर्ट होंगे। ओके, तो हमने कॉस्ट पर एक्विजिशन सेट करके हमने 14 यूजर कह दिए कि ओके, सो थ्रू दोस 40 यूजर जिनको लगता है कि कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है, जस्ट टारगेट 60 यूजर। सो इन दिस वे यू हैव जस्ट रिड्यूस योर मार्केट साइज बाय जस्ट पुटिंग दिस लिमिट, which is a good and bad at the same time। good is sense के अंदर के now you are going to target only user जिनके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और bad is sense के अंदर आपने वो 40 यूजर निगलेक्ट कर दिए हैं और आपने अपना मार्केट साइज बहुत छोटा कर दिया और ये ऑडियंस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी until and unless आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि हर दिन कोई ना कोई बंदा लाजमी सर्च कर रहा था, then it's going to work perfectly fine। so how does it work? के कॉस्ट पर एक्विजिशन ये होता है कि आप कह देते हैं कि भाई मैं एक यूजर को एक्वायर करने के लिए सिर्फ मैक्सिमम $10 स्पेंड कर सकता हूँ, दैट्स इट। अगर गूगल अगर तुम्हें लगता है कि तुम $10 स्पेंड करके ये यूजर लेके आ सकते हो, देन शो माई एड, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू शो माई एड। इन दिस वे गूगल बिकम बाउंड कि अब सिर्फ उनको एड दिखाए और आपका गोल मीट करे $10 का, ताकि जिसको लगता है कि 100% चांसेस है कन्वर्ट होने के। यू आर जस्ट रिड्यूसिंग योर मार्केट साइज, बट इट्स गुड एंड बैड इन द सेम वे, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो बेसिकली दिस इज हाउ दे मैक्सिमाइज कन्वर्जंस वर्क। आई होप कि चीजें मैंने इजी वे में समझाई होंगी। इफ देयर इज समथिंग डाउट और समथिंग इज अनक्लियर, feel free to ask in the comment section। I will make sure to respond you as soon as possible।